Welcome again. Here is Professor Rameshwar Gagrani. We are learning chemistry. We are learning atomic structure, periodic classification of elements, S block elements, P block elements, D block elements, A block elements. And we are learning this step by step. We are using NCERT book because we'll have to crack the tough nut IIT JEE NEET as well as the state level entrance exam CET, NATA, NDA, VIT, BITSAT and various entrance exams. Let us continue. मैं ये बता रहा था, आप बोर्ड पर आप ध्यान दो। अभी आप अगर बोर्ड पर ध्यान दोगे तो आपको समझेगा मैंने क्या लिखा है। अगर मैं सोडियम को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, मैंने उसके पहले नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा है, यू कैन सी इट। तो आप ये किसी भी एलिमेंट के बारे में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप नियॉन के बारे में लिखे, आप हीलियम के बारे में लिख सकते हैं, आप लिथियम के बारे में लिख सकते हैं, आप बेरिलियम के बारे में भी इस तरह से लिख सकते हैं, आप बोरॉन के बारे में लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट in this fashion, you can write the electronic configuration of any element. I have taken few example like sodium. अगर मैं सोडियम का atomic number 11 है, आप ध्यान से देखो, the atomic number of sodium is 11. So it has 11 electrons. So how I represented its electronic configuration? This is abbreviated form or condensed form, where I have taken the neon with 3s1. In case of magnesium, atomic number is 12, therefore it has 12 electrons. I have taken the neon in square bracket with 3s2. In case of aluminum, I shall write like this. Aluminum के बारे में लिखूंगा, atomic number is 13. So how I shall write? Neon 3s2, 3p1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. I shall write like this. अब बिल्कुल ध्यान से सुनो. This outermost shell electronic configuration of any atom, आप सोडियम लो, आप मैग्नीशियम लो, आप एल्यूमिनियम लो, ये outermost shell है सोडियम के लिए, third shell is the outermost shell. For magnesium, the third shell is the outermost shell. For aluminum, the third shell is the outermost shell. So those electrons which are present in the outermost shell, they are called as valence electron. In case of sodium, there is one valence electron. In case of magnesium, there is two valence electrons. In case of aluminum, there is 3 valence electrons. These are called as valence electrons because they belong to the outermost shell. Valence electrons because they are present in valence shell or outermost shell. देखो आपको बिल्कुल सही समझ रहा है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आपका पूरा ध्यान यहाँ पर ही होना चाहिए, आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूं, these electrons are called as core electrons. These electrons are called as core electrons. The electrons present in the inner shells, except outermost shell or valence shell, those electrons which are present inside except valence shell or outermost shell, those electrons present, that means the completed shell electrons are called as core electrons. Completed shell electrons, ये जो है, जैसे सोडियम की फर्स्ट और सेकंड शेल कंप्लीटेड है, मैग्नीशियम की फर्स्ट और सेकंड शेल कंप्लीटेड है, एल्यूमिनियम की फर्स्ट और सेकंड शेल कंप्लीटेड है. सो कंप्लीटेड शेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज कोर इलेक्ट्रॉन्स. देखो आपको ध्यान में आ रहा है क्या? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? सम हम मैग्नीशियम को Na3s1 लिख सकते हैं क्या? नहीं, आप मैग्नीशियम को Na3s1 नहीं लिख सकते. जाती सर, हाँ बोलो. एक करो ना. हाँ क्या बोल रहे? यस, एक बार रिपीट करो. ओके मैं बता रहा हूँ, ठीक है. आप पहले नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में ले लो, नियॉन का, ऑर्गन का. आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ध्यान में लीजिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक से ध्यान में आ जाए. अब मैं ये बता रहा हूँ कि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6. अब इसके बारे में तो आप बहुत स्मार्ट है, आप सभी स्टूडेंट को 100% जमेगा. क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने बहुत लेक्चर इस पे लिए, इसमें कोई भी शंका नहीं. आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आने चाहिए, क्योंकि हमने शेल्स समझ लिया, हमने सबशेल समझ लिया, हमने ऑर्बिटल समझ लिया, वुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमने समझ लिया, हमने साथ में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी समझ लिया, हमने अबव प्रिंसिपल का भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी स्टडी किया, वो भी हमने समझ लिया. सो हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम यू नो बेटर, आप सभी को पता है. अब मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, नियॉन का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया है. नियॉन की ये फर्स्ट शेल है, दिस इज सेकंड शेल.
सेकंड शेल नियॉन की देखो वैलेंस शेल कहा जाता है, उसका ऑक्टेट पूरा है, बिकॉज इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ नियॉन 8 electrons are present, and when the outermost shell contains 8 electrons we say that the octet is completed. किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट के एटम में अगर आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो हमें एक्सेप्ट हेलियम we say that its octet is completed and it is highly stable. जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है मतलब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, वो स्टेबल हो जाता है. ये हमारी थ्योरी है. फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, these are the noble elements, these are the inert elements, their octet is completed, their outermost shell is completed. How we represent the outermost shell electrons? We represent by like this, ns2 np6. This is outermost shell, remember yourself. This is outermost shell or valence shell, outermost shell or valence shell, ns2 np6. अगर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हमें किसी भी एलिमेंट में मिल जाए आउटरमोस्ट शेल में तो वो स्टेबल होता है. जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर मैं बता दूं. सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है. हाँ बेटा, यस, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं हुई. स्क्रीन इज अ लिटिल ब्लर. ओके, स्क्रीन तो ठीक है मेरे हिसाब से. आप देखो तो क्या अब ठीक है? आपको ब्लड तो नहीं होना चाहिए. ठीक है, मैं पढ़ा तो और रिपीट भी करूंगा. अभी और ध्यान दो. मैं अगर कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर लिखूं, इस साइड में मैं लिख देता हूं. लेट मी राइट फ्यू एलिमेंट्स लाइक दिस. आप थोड़ा ध्यान दो. 1s2, 2s2, 2p6, ये हो गया आउटरमोस्ट शेल. ये आउटरमोस्ट शेल है, आउटरमोस्ट शेल of neon which is completed, ns2 np6. n stands for second for neon. अब मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन. ये मैंने लिख दिया आपके सामने. इनके आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है मैं लिखना पसंद करूंगा. लेट मी राइट द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज ns2 np5 np6, नॉट ns2 np5, np6. अब देख रहे हैं. अब मैं इसको यहाँ पर आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूँ. फॉर नियॉन इट इज अ 2s2 2p6, इसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटेड है. आर्गॉन 3s2 3p6, इसका आउटरमोस्ट कंप्लीटेड है. क्रिप्टॉन 4s2 4p6, इसका आउटरमोस्ट कंप्लीटेड है. जेनॉन 5s2 5p6, इसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटेड है. रेडॉन 6s2 6p6, इसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटेड है. अब आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन देखो, ns2 np5 np6. n स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नियॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आउटरमोस्ट शेल का सेकंड है. आफ्टर नियॉन वेरी क्लोज टू द नियॉन, वेरी डाउन टू द नियॉन अक्रॉस द ग्रुप. नियॉन के नीचे आर्गॉन है, आर्गॉन के नीचे क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन के नीचे जेनॉन है, जेनॉन के नीचे रेडॉन है. और नियॉन के ऊपर हेलियम है जिसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ ns2 है. सो एक्सेप्ट हेलियम the remaining elements in the inert group or zero group elements, they have completed their octet as ns2 np6. For neon it is second shell, for argon it is third period, for krypton it is fourth period, for xenon it is fifth period, for radon it is sixth period, because number of shells is equal to period number. तो इनका आउटरमोस्ट शेल देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा है. 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6, because their number of electrons in the outermost shell is 8 and therefore they are all stable. ये एक पार्ट हो गया हमारा. ऑक्टेट की बात मैंने बताई ऑक्टेट के बारे में. Except these elements, that is inert elements or zero group elements, if you see the other elements, if you compare the other elements, let us take sodium, let us take magnesium, let us take aluminum, let us take carbon, let us take scandium, let us take potassium, let us take calcium. So various elements except noble elements, zero group elements, all remaining elements, they have not completed their octet. Their outermost shell is incompleted. Either they have I mean to say they have short of electrons, that is 8. 8 से उनके नीचे इलेक्ट्रॉन है उनके आउटरमोस्ट शेल में. आप सोडियम को देखें, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है. उसमें से हमने नियॉन
कंसिडर करके नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये, सो 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने नियॉन के कंसिडर कर लिए। ये जो ब्रैकेट है ये इंडिकेट्स दैट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is the except outermost shell of sodium. अब सोडियम आई माझे पे काढून ठेव. हा पोट भरून पाहिजे. तुमचा आवाज येतोय, आवाज थांबवा. मी काय सांगतो ते ऐका. मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान दो. मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पर, मैं अगर यहाँ पर ये लिखता हूँ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, मैं लिखता हूँ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन L1 क्या होगा, देखो मैं लिख रहा हूं 1s2, ये ऐसे कैसे आएगा 2s2 2p6, ये भी तो ऐसे कैसे आएगा, the same electronic configuration will be there. सोडियम 1s2 2s2 2p6, लेकिन यहां बदल जाएगा 3s1 आ जाएगा. 11th electron will enter into the 3s1. अब what is this? This is neon. ये क्या, ये नियॉन है, देखो ऊपर नीचे. आप अगर ध्यान में लेते हो तो 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, except outermost shell, the core electrons I have represented by the neon. Neon का atomic number 10 है, उसका electronic configuration that is the inner shell electronic configuration of sodium, और except its last electron, वो हमने यहाँ लिख दिया 3s1. So these electrons are called as core electrons. These electrons are called as core electrons. See it carefully. ये इलेक्ट्रॉन को आप core electron बता रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है. These electrons are called as core electrons. ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको मैं core electrons बता रहा हूँ. जब मैं सोडियम के माध्यम से लिख रहा हूँ तब this is what these electrons are called as core electrons. इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो core electrons को कहा जाता है. Except outermost shell. This is outermost shell electron. Outermost shell electron. तो यहां पर आपने ये भी देख लिया कि हाउ टू रिप्रेजेंट. अब मैं क्लोरीन का रिप्रेजेंट करता हूं, आपको बता रहा हूं. फिर से हमने नियॉन लिखा है. अब हम आर्गन का लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन. लेट अस राइट. मैं आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं. आर्गन एटॉमिक नंबर 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ये हो गया आपका ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसमें आपने 3 शेल बना दिए 2 8 8. देखो आप बिल्कुल सही है कि नहीं. पूरी तरह से ध्यान दो. आप पूरी तरह से ध्यान दोगे तो ही आपको समझेगा. आप अगर गड़बड़ करोगे तो नहीं समझेगा. ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने 3 शेल बना दिए. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए आउट ऑफ 18. रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द सेकंड शेल 8 वहां चले गए. 2 8 10 यहाँ हो गए तो 8 बच गए. 8 इलेक्ट्रॉन रह गए. 2 8 अगेन 8. ये तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा. 2 8 8 फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल, ये लिख दिया हमने. अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दो. अब मैं ले रहा हूं यहाँ पर पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर मुझे पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना है तो कैसा लिखूंगा वो देखो आप. पोटेशियम आ गया आपके सामने, मैं लिख रहा हूं पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1. अब ये हो गया आपके पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक लेवल. लेकिन ये रॉन्ग है. दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रॉन्ग. व्हाई? अब यहां से शुरुआत हो रही है, मैं बताना चाहता हूं. आप पूरी तरह से ध्यान दोगे, आप सुन रहे हो मेरी बात. दिस इज नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम. आप ठीक से देखो. दिस इज अ रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? अगर बाय रूल चले तो देखो 1s2 फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से, थर्ड शेल में 18 चाहिए. थर्ड शेल की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की. आप ध्यान में दो. The capacity of third shell is 18 electron, where 3s 3p and 3d shell appears. बराबर ना? थर्ड शेल की कैपेसिटी क्या है? थर्ड शेल में आप अगर कंसीडर करो, when you write third shell, s p d orbitals are present. In third shell, s p and d orbitals are present. s subshell, p subshell and d subshells are present. And s subshell का एक s orbital है, p subshell के 3 p orbital है और d subshell के 5 d orbital है. कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन्स. और हमारे पास हम अगर कंसीडर करें, दिस इज फर्स्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ क्रेडिट करे आउट ऑफ 19. 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ क्रेडिट करे, 8 and 10 2. तो हमने 9 यहाँ क्यों नहीं रख सकते? 6 + 2 8 + 1 9.
हम लोग रख सकते हैं दिस शुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पोटेशियम, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस इज रॉन्ग। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम का नहीं है। क्या आता है ये मैं बता रहा हूं। व्हेन यू सी द एनर्जी लेवल्स, when you see the energy levels, let me tell you the energy level of 4s orbital is less than 3d. Remember yourself, energy level of 4s orbital is less than 3d orbital, and hence the 19th electron of potassium enters into the s subshell, not the d subshell. अब ध्यान से सुनो, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। नाउ आई एम राइटिंग हियर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। यहां ध्यान दो, यहां पर मैंने एंट्री कर दी, इसको 4s1 लिख दिया है। ज्यादातर स्टूडेंट को समझ रहा है, मेरे हिसाब से तो सभी स्टूडेंट को समझ रहा है क्योंकि आप गगरणी में बैठे हैं। यहां पर मैंने 4s1 एंट्री कर दिया। So instead of entering into the 3D of the same principal shell, third shell में D भी है, S है P है तो D भी है, but the energy of the 3D is greater than 4s. This is very important. Note down yourself, record yourself. यहां से देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने थोड़ा सा चेंज कर लिया, आप समझ रहे हैं। Here the electronic configuration slightly deviated. कैसा हो गया? The energy of the 4s orbital is lesser than energy of the 3d orbital. Electrons are filled according to their increasing energy level. First they enter into the lowest energy state. पहले वो lowest, रुको मैं जरा पहले बता देता हूँ फिर बाद में बात करते हैं। First they enter into the lowest energy state, and sequentially according to the increasing energy state they enters into the sequentially shells, subshells, and hence orbitals. The energy of the 4s orbital is lesser than the energy of the 3d orbital, and therefore the 19th electron, this one, the 19th electron, this is a 19th electron. It instead of entering into the 3d shell, it enters into the 4s shell, and this is the correct electronic configuration of potassium. This is correct electronic configuration of potassium. You can see 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसमें मैं थोड़ा सा और आगे लिख रहा हूं, आप ठीक से देखो। इसे मैं क्या लिख रहा हूं, पोटेशियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ आई कैन राइट द पोटेशियम इन टर्म्स ऑफ दिस कोर इलेक्ट्रॉन्स, इन टर्म्स ऑफ दिस ऑर्गन के माध्यम से कैसा लिखूंगा। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 18, आई कैन राइट दिस इज ऑर्गन, हाँ एटॉमिक नंबर 19, सॉरी, दिस इज ऑर्गन, टिल टू दिस इज ऑर्गन, यहां तक तो ऑर्गन है, आपको पता है। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये ऑर्गन है, 3d का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये आपके सामने ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। राइट डाउन ऑर्गन एज अ कोर इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज देयर 4s1, व्हाट इज देयर 4s1। इसका रंग कलर बदल देता हूं मैं, याचा रंग मी बदलून देतो म्हणजे तुमचा लक्षात राहील। इट इज 4s1। सो यू कैन राइट द पोटेशियम लाइक दिस, इस तरह से भी आप पोटेशियम लिख सकते हो। देखो आपको समझा है क्या। अब मैं आपको कुछ, अब अगर कैल्शियम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, मैं ऊपर लिखता हूं, आप ध्यान दो। राइट डाउन द कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्गन इन अ ब्रैकेट 4s2 आएगा, क्योंकि इसका कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी इसलिए हमने 4s1 लिखा। द एनर्जी ऑफ द 4s ऑर्बिटल इज लेस देन 3d ऑर्बिटल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सेम केसेस हियर, कैल्शियम में लो 20, स्कैंडियम में भी वही रहेगा। अब स्कैंडियम में लिखोगे तो क्या लिखेंगे ये भी हमें देखना है, स्कैंडियम में हम लोग देखेंगे। अब आपको क्या डाउट से आप पूछो मुझे, आपको किसको क्या नहीं सर। हाँ सर ऐसे तो फिर डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा ना? आएगा ना, फिर आगे जाएंगे तब आएगा ना। 4s का कैपेसिटी खत्म होने के बाद कहाँ जाएंगे, 3d में जाएंगे ना, क्योंकि 4s के बाद तुरंत 3d है। जब मेरे पास कैल्शियम, अब लिखता हूं, आपने सही क्वेश्चन पूछा है तो मैं लिखता हूं स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 ऑर्गन एज इट इज। अब क्या आएगा 3d1 4s2,
देखो ये ऑर्गन का है कि नहीं, ऑर्गन 18 प्लस 3d1 का 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 21। 18 और 2 20 और 1 21। देखो आ गए। फिर इंट्रोडक्शन तो हो गया ना, क्योंकि 4s का जो है कैपेसिटी खत्म हो गया ना, फिर आगे चले जाएगा ना 3d में, क्योंकि 4s से ज्यादा एनर्जी 3d की है। आप समझ रहे हैं? 4s से ज्यादा एनर्जी 3d की है। हाँ, 3d के बाद फिर आएगा आपका 4p आएगा, 4s 3d देन 4p। आप समझ रहे हैं? फिर 4d 4f। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें समझना है। किसी ने क्या पूछा है? Somebody asked me, क्या पूछा है? सर हाउ इज एनर्जी लेवल ऑफ 3d इज ग्रेटर देन 4s? ये आपको प्रैक्टिकली जब आप अबव प्रिंसिपल देखोगे तो उसमें भी देखने मिलेगा। इसमें n+l रूल वर्कआउट करता है, जो अभी हमने नहीं दिखाया, जो मैंने अभी लिखा नहीं। n+l रूल से यहाँ पर हमने उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो तो मैं बता देता हूं। चलो ठीक है, किसी ने पूछा है n+l रूल हम लोग देख लेते हैं। n+l रूल के लिए मैं चाहूंगा कल बताओ, क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार ये समझो। n+l रूल में जिसका वैल्यू कम होता है, किसी ने सवाल पूछा है, ये जतिन ने। बेटा n+l रूल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजोमेथल क्वांटम नंबर दोनों कंसीडर किए जाते हैं। चलो मैं आपके समझाने के लिए बता ही देता हूं। आप ये लो 4s और 3d, मैं ये कट करता हूं, ये मैं कट कर देता हूं, मैं लिख के बता दूं n+l रूल क्या है। n+l रूल क्या है? n+l रूल, अब मैं 4s के लिए लिख लूं, 4s और 3d के लिए, दोनों के लिए लिखूं। 4s के लिए n का वैल्यू क्या होगा? आपसे जवाब चाहिए मुझे। आप मुझे रेज योर हैंड्स, टेल मी द वैल्यू ऑफ n+4s के लिए n का वैल्यू क्या और l का वैल्यू क्या? आपके हाथ ऊपर करके आप मुझे जवाब दोगे। मुझे तो यार कोई दिख नहीं रहा, लेकिन आप मुझे हाथ ऊपर करो, फिर समझेगा। रेज योर हैंड्स। ओके निशांत, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर 4s? यस निशांत। 4. यस वेरी गुड, इट इज 4। लेट मी राइट 4। मुझे लिख दो 4 प्लस l का वैल्यू s के लिए क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Zero. हाँ यस 0 0. हाँ, हु टोल्ड दिस? 0 sir. हाँ साक्षी, गुड, इट इज 0। तो आ गया समेशन 4 आ गया, 4 + 0 4। अब यहां में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर 3d सब शेल, 3d शेल? n का वैल्यू क्या रहेगा? 3। 3। सो राइट डाउन 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d फॉर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजोमेथल? 0. d के लिए 0. d के लिए क्या रहेगा? 2 sir. 2. Yes, yes, yes. 2. I mean to say 2. So it is for D, it is 2. Remember yourself. D के लिए 2 रहेगा। क्या है इसका समेशन? क्या है? Sorry, n+l is equal to 3 + 2 is equal to 5. Smaller the value, lower will be the energy. Smaller the value, lower will be the energy. आप जरा ध्यान दो। अरे बारिश आ रही, उधर विंडो वगैरह बंद कर दो। n+l रूल क्या है? n+l रूल क्या है? जिसका वैल्यू समेशन कम आएगा, that will be has a lesser energy than the corresponding adjacent orbital. देखो इसमें 3d में 5 वैल्यू आई है, 4s में 4 वैल्यू आई है, so 4 is less than 5 and therefore 4s has a lesser energy, 4s orbital has a lesser energy than 3d orbital. ये जतिन शामलानी ने प्रश्न पूछा था, मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन मान लो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, हम समझ के चलते बोथ हैविंग द सेम वैल्यू। अब ठीक से ध्यान दो, मेरी बात ठीक से सुनो। n+l रूल है, सही है अर्शिता, दिस इज n+l रूल। इफ बोथ हैव द सेम वैल्यूज, अगर मान लो n+l रूल की वैल्यू दोनों के लिए सेम आ गई, देन इन सच अ केस द इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द लोअर एनर्जी लेवल। ऐसे केस में लाइट चले गई ना? ओके ओके, लाइट चले गई बेटा। इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द लोअर एनर्जी लेवल। ओ आवाज नहीं, नहीं होना रे। हाँ ठीक है, ट्राई करो हॉटस्पॉट से।